Like I told you, we are having sequential circuit, and sequential circuit may say like we'll have flip-flop. Next topic is counter, and another topic is register. After that, your digital electronics will complete it. Okay. So basically, flip-flop we have done. Only will get only one question or maybe two in the paper, but the chances are one, any one of the topic. So now today we'll study about the counters. Flip-flop we have done in the yesterday's class, correct? So what is basically a counter? It is also the sequential circuit. It is basically the digital circuit used for counting pulses. Okay, it is used for counting pulses, that how many are the pulses are there. Like suppose I am giving you one example. There is a car parking, okay, and in the car parking there is a capacity of 100 cars. So in the display they have mentioned that how many cars are already present in the parking and how many cars space is left. Okay, like there is a space of 100 cars, but अभी अंदर जा रही है, अंदर कितनी है 87 कार्स हैं, तो वो क्या होगा, नंबर डिस्प्ले होगा 87. तो हम उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट हाउ मेनी कार्स आर लेफ्ट, 13 कार्स आर लेफ्ट, राइट. So if one car will more enter into this, then this number will become automatically 88, right. So basically it is increasing the value. So that's why we are using the counter, that is known as technically up counter, which is used to increase the counting. And now suppose one of the car or two of the car moves out, right. So in that case also we have to do the numbering. So instead of 88 we'll now have the number of 86. So now it is decreasing the number, so it would be down counter. Okay, it would be down counter. Understood? If it is increasing, if it is decreasing, and if it is increasing and decreasing both the thing, then technically it is known as up down counter. Got it? Understood? So this is the thing. Now suppose in this thing we'll have counter. Counter is further classified into two categories. One of the counter is synchronous. Now next counter is further divided category. One is synchronous counter and another one is the asynchronous counter. Okay, one of the counter is synchronous, another counter is asynchronous, correct. So basically in the asynchronous counter, what is the difference? Like we are having this flip flop and this flip flop, तो इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज हमारे पास क्यू एक आउटपुट आई, तो जो भी तुम्हारे पास आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट वाले की क्या बन जाएगी, क्लॉक पल्स बन जाएगी. ओके, अब सिंक्रोनस में क्या होता है, हमारे पास सिंक्रोनस में दोनों को हम सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें नहीं होता ऐसे. क्लियर? दोनों की इनकी सेपरेट क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं. क्या एक होता है
नहीं नहीं नहीं, नोट वाली बात नहीं है, बताती हूँ। हमारे पास क्या होता है, सिंक्रोनस। सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि हमारे पास, अगर मैं दो फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप ए है, ये फ्लिप फ्लॉप बी है। इसकी आउटपुट क्या होगी, क्यू ए। यहाँ पे क्या होगा, क्यू ए बार। इसकी आउटपुट क्या होगी, क्यू, और यहाँ पे क्या होगा, बार। करेक्ट। इनपुट में सपोज हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, मैं जे के ले रही हूँ, तो ये जे ए, के ए, दिस वन वुड बी जे बी, दिस वन वुड बी ए। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमारे पास हमें क्लॉक पल्स देनी होगी ना, तो ये क्लॉक पल्स दे दी और इसको क्लॉक पल्स दे दी। तो बेसिकली क्या होता है, काउंटर्स एक तरह से, जब अगर मैं दोनों फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, काउंटर। तो ये देखो, जैसे मैंने इसकी आउटपुट, इनपुट बन रही है, ये हमारे पास इस तरह से जा रहा है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, काउंटर की तरह वर्क करेगा। राइट। तो वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो अब देखो, इसमें जो डिफरेंस है जो मैं तुम्हें बता रही थी, सिंक्रोनस का और एसिंक्रोनस का, अगर मैंने यहाँ क्लॉक पल्स एक प्रोवाइड कर दी, ठीक, सेम, वही सेम क्लॉक पल्स मैंने कनेक्ट कर दी और वही सेम क्लॉक पल्स मैंने से कनेक्ट, कौन सी कैटेगरी का काउंटर बन जाएगा, ये बन जाएगा बस सिंक्रोनस काउंटर। गॉट इट। ये बनाओ एक बार। करेक्ट। अब इसमें गॉट इट। अब इस frequently 3 अप काउंट। अब इन्होंने ऑनर सब काउंटर, अगर तुम थ्री का था वो।
अब इसमें एक अगर सब यहाँ पे आ जाएगा, अब हम क्या शॉक पल्स सेट की नेगेटिव शॉक गॉट इट। अब यहाँ पे लॉजिक जनरली आस्क अप का फिर गॉट इट का ब्लॉक यहाँ पे देख राइट। अब इस फाइव
स्टार्टिंग हम आउट अप टू द क्यू, राइट। आउटपुट अब तुम देखो बी में, अब राइट। कभी भी चेंज, करेक्ट। अब तुम अब ये पॉजिटिव,
आउटपुट। गॉट इट? अब नाउ विल हैव डाउन काउंटर, तो क्या डिफरेंस होएगा? सी, जे है, लाइक जे ए के ए, output is QA, QA bar. This one would be JB, KB, output is QB, QB bar. Correct? So negative edge है तो negative edge clock बना देते हैं. Now this said down counter. So down counter में QA bar would be the output of the next flip flop of the clock. ठीक है? अप काउंटर में क्या था? QA कनेक्ट थी. हाँ, ऊपर नीचे ऐसे नहीं याद करो. अप काउंटर में तुम्हारा QA कनेक्ट था नेक्स्ट क्लॉक से. डाउन काउंटर में तुम्हारा QA बार कनेक्ट है नेक्स्ट काउंटर से. ठीक है, इसी तरह फर्दर होता तो नेक्स्ट काउंटर से QB बार कनेक्ट होता. वो 3 के लिए मैं जनरल बता रही हूँ. गॉट इट? तो अब इसकी टाइमिंग डायग्राम, अगर वो बोले टाइमिंग डायग्राम या ना बोले, बट यू हैव टू ड्रॉ इट. ये मत सोचना कि इन्होंने बोला नहीं है तो हमें बना के नहीं आना है, वो उसी के साथ ही होगा. हाँ, अपना दिमाग इन चीजों में मत लगाना. वो टाइमिंग डायग्राम सेपरेटली नहीं बोलते, बट यू हैव टू ड्रॉ इट. लाइक अब नेगेटिव एज है तो 1 2 3 4 5 6, जनरली 6 क्लॉक पल्स का बनाना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू कि 7 बना लो. देखो बना तो तुम 7 8 9 सकते हो, लाइक कुछ भी बना सकते, इससे कम मत बनाना. ठीक है, 7 तक बना लो. 7 से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, बस तो वो साइकिल रिपीट नहीं होगी. 2 के लिए तो तुम्हारे पास 4 भी बहुत है, बट अगर 3 बिट का आएगा तो तुम्हारा 8 तक जाना चाहिए. ठीक है, तो अगेन विल स्टार्ट विद द 0. ये Q1, सबसे पहले हम क्या बनेंगे? Q1 मतलब QA. QA ओके. तो QA के लिए वही रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे गया. जैसे ये ऐसे छोटा छोटा सा ये बना लो कि जैसे ये लाइन आएगी चेंज कर दो, लाइन आ गई, चेंज कर दो, लाइन आ गई. बट अब देखो हमें क्या चाहिए, जो हमारी क्लॉक पल्स है वो QA से तो कनेक्टेड नहीं है, जो हमारी क्लॉक पल्स है वो किससे कनेक्ट है? QA बार से. नाउ वी नीड टू ड्रॉ QA बार. QA बार इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ QA. तो दिस इज 0, तो ये कितना हो जाएगा? 1. उसका बिल्कुल उल्टा बना लो, जस्ट लाइक द मिरर इमेज. ठीक है, अब नाउ ये QA बार तुम्हारी क्लॉक है, करेक्ट? नेगेटिव के लिए तो देखो यहाँ से चल रहे हो, नेगेटिव में क्या होता है? ऊपर से नीचे, ये हो गया, ऊपर से नीचे ये, ऊपर से नीचे ये, ऊपर से नीचे. अब तुम्हारी क्या बनेगी? Q2 आउटपुट. बिट के लिए मैंने बना रही हूँ ना, तो QB से डिनोट, 1 या 2 या B से ABC कर भी कर लो, मर्जी तुम्हारी. तो अगेन इट स्टार्ट विद 0. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी. तो ये हो गया तुम्हारा QB. So this is 2-bit asynchronous down counter with negative edge triggered flip flop. तो ये तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे मॉडिफाई करके. Got it? तो उस काउंटर्स में से यही आता है तुम्हारा. देखो सिलेबस में तो तुम्हारा रिंग काउंटर, लाइक इन्होंने तो काउंटर बोल दिया कि काउंटर है सिलेबस में. ठीक है, तो उसमें रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर वगैरह और भी बहुत सारे कैटेगरी के काउंटर्स हैं. तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो इसी टाइप के ही होते हैं मणिपाल के लिए. अगर मैं एक बार चेक करूंगी प्रीवियस ईयर पेपर में कि 1 या 2 बार से ज़्यादा है रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर, तो फिर मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगी, अदरवाइज कोई नीड नहीं है.